Welcome to all in Gate Plus. Today, our one of the most important topic, that is the inverse of the matrix. And many students ask how to find the inverse of the matrix and what is the shortcut about this. And we can directly find inverse of the matrix when matrix is 2 cross 2. But how we can find the inverse of the matrix when dimension of the matrix is 3 cross 3? Okay. Then what is the shortcut? We can discuss later on. First we have to understand here what is the formula to finding the inverse of the any matrix. Inverse of the any matrix, that is equals to adjoint of matrix A upon determinants of that matrix. Means what we can say here, inverse of the matrix is exist when determinants of that matrix should not be equals to 0. And if any matrix whose determinant is not 0, means we can say this matrix is non-singular matrix. Means we can say, in other hand, a matrix is non-singular matrix, then its inverse of that matrix exists, otherwise does not exist here. Okay. Second point about this one is what? This one is determinants of that matrix is not 0, and see the determinants of that matrix is 0, means this matrix is what? This matrix is called as singular matrix. Second thing, suppose that is A transpose equals to A, this one is the symmetric matrix. If A transpose equals to minus A, this one is what? Skew symmetric matrix. And A into A transpose, that is equals to identity, this one is the orthogonal matrix. Clear? Okay, second about this one is the Aij equals to what? Aji. This one is the element in the matrix, and Aij equals to minus of Aji. Okay, this one is the condition for symmetric, skew symmetric matrix, and this one is for orthogonal matrix here. Okay, suppose if I represent any matrix A, element is defined by Aij. Okay, and each element, that is Aij equals to, suppose if I write here I square minus j square, this is defined for all the value of I and j. Then, and if it is the odd, n cross n, dimension is n cross n, and where n is odd here, then what is the inverse of that matrix? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये थ्योरी फॉर्म में रहेगा, तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना रहेगा। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। सपोज ए आई जे इक्वल्स टू गिवन हियर आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर. What we can say here, aij, suppose if I take minus common here, then we can say here j square minus I square. Again we can write here, this one is what? If it is ij, this one is ij, we can write here aij, and if it is ji, then we can say here aji. What is the condition of this one? This one is the condition for skew symmetric matrix. If it is skew symmetric matrix, and what about this? In skew symmetric matrix, suppose if I take I equals to j, then we can say I equals to 0. Means what is the condition in skew symmetric matrix? In skew symmetric matrix, principal diagonal must be 0. Principal diagonal element must be 0. Okay. Suppose if I write here matrix A, that is what? That is 0, 0, and this one is 1, and this one is minus 1. Then we can directly say this one is the skew symmetric matrix because principal diagonal element is 0. And next point, this one is the A12 and minus of A21. Means this one is the what? This one is the skew symmetric matrix. Suppose if I check the determinant of this one is the 1. Determinant of this one is 1. Clear? Okay. Second point about the skew symmetric matrix is, if a matrix A is the skew symmetric matrix of odd order, then determinants of that matrix is always be 0. Okay, this one is the one of the most important point here. Means if n is the odd here and this one is the skew symmetric matrix, then determinants of that matrix is 0. Or we can say here, if it is a skew symmetric matrix of odd order, then this one matrix must be a singular matrix. Okay, तो ये सब पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब का यूज होता है 3x3 में हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं इसके आगे क्या रहता है। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले लूं, a मैट्रिक्स A is 0 1 0, this one is 0 0 1, अगेन 1 0 0। ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, इसकी हम बात करने वाले कैसे इसका इनवर्स डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले
एक मेथड तो आपको पता ही होगा, कन्वेंशनल क्या मेथड होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करो अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसी का मैं शॉर्टकट देने जा रहा हूं कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए सिंपली क्या करो, यहां पे जो भी मैट्रिक्स गिवन है देखो, लिखो 0 1 0 नेक्स्ट। ओके, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पे 0 1 0 अगेन 0 0 1 1 0 0। ठीक है, इसको कॉपी कर दो, यहाँ पे 0 0 1 अगेन इसको कॉपी करो 1 0 0 अगेन इस वाली रो को पूरी काम कॉपी करो 0 1 0 0 1, इस रो को कॉपी करो 0 0। ठीक है, एक ऐसा बना दो और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगेन 0, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और इसका क्रॉस 0 0। तो ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है कोफैक्टर ऑफ ए। अगेन इसका क्या लेना पड़ेगा, मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, वही डिफाइन करेगा किसको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लूंगा, तो ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, just interchange the row and column, and means we can say here adjoint of A that is equals to what, interchange the row column 0 1 0 0 0 1 again 1 0 0। क्लियर, ये आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अगेन डिटरमिनेंट्स, इसका डिटरमिनेंट्स लोगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स जो मैट्रिक्स गिवन था क्या था 0 0 1 0 अगेन 0 0 1 1 0 0, यही मैट्रिक्स था ये। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट लोगे, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, सपोज इस एलिमेंट को लिया, इसको डिलीट कर दो, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 1 से तो यही आएगा, मीन्स यही क्या है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पे एक तो ये शॉर्टकट है, इसके अलावा मैं शॉर्टकट देने जा रहा हूँ, एक जो और शॉर्टकट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करना, क्योंकि गेट के एग्जाम में और ईएस के एग्जाम में ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, ध्यान रखना। तो मैंने अभी ऑर्थोगोनल की कंडीशन बताई थी, A into A ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड इफ आई टेक द डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस वन, डिटरमिनेंट ऑफ A एंड डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो या उसको ट्रांसपोज ले लो, उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ध्यान रखना, equals to 1, then determinant of A equals to what, plus minus 1। What I am trying to say means if determinants of that matrix is 1, then we can directly say matrix A is the orthogonal matrix. Matrix A is orthogonal matrix, and if it is orthogonal matrix, then what we have to say, यहाँ से हम अगर इसको A को हटाना, यहाँ से जस्ट इसमें A इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, इस साइड से A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स कोई भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। तो बोलो यहाँ पे इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो A ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट, A इनवर्स। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, और इस पर क्वेश्चन कई टाइम पूछे जा चुके हैं कि कभी भी A इनवर्स निकालना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या उसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, तो सिंपली आप कुछ भी मत करो, जो मैट्रिक्स का दिया हुआ था उसका ट्रांसपोज ले लो, वही क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इसका इनवर्स निकालना था, तो डायरेक्ट आप सिंपली इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, इसका जस्ट रो और कॉलम को क्या करो, इंटरचेंज करो, तो 0 1 0, इसको लिखो 0 0 1, अगेन लिख दो क्या 1 0 0। अब इसको मैच कराओ, दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, मिस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक ही क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लो, इस क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। सिंपली कहने का मीनिंग का कि आपको प्रॉपर्टी का आइडिया है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इतना ही बेसिक था। ठीक है, शॉर्ट टर्म वीडियो था, ऐसे वीडियो और बनेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।